الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس کائنات اور دنیا کے اندر مبعوث کیا بھیجا۔ یقیناً اللہ ہمارا خالق مالک اور رازق ہے جو اس بات پر قادر مطلق ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہم سارے بنی انسان اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ محترم سامعین ناظرین اکرام، سب سے پہلے معذرت خواہی کے پروگرام کا وقت 6 بجے تھا، لیکن بارش کی وجہ سے پروگرام کو مؤخر کرنا پڑا اور یہ پروگرام 6 بجے کی بجائے 7 بجے ہوا۔ دوسری بات یہ کہ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ۔ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جن لوگوں نے بڑی صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور کوششیں کی، یقیناً کوشش کو کامیابی بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ گرچہ وقت تاخیر سے شروع ہو رہی ہے پروگرام سے بڑھ کر، لیکن پروگرام کا انعقاد ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس پر آپ تمام لوگ قابل تعریف ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہمیں رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے لے کر جہاں تک اللہ رب العالمین کی منشاء و مرضی ہو آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 کے اندر بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب ہم نے اہل کتاب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم ان تمام چیزوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دینا اور اس میں سے خود بھی تم نہ چھپانا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کے ان کے پیٹھ پیچھے ساری چیزوں کو چھپا دیا اور اس کو کم قیمت پر بیچ دیا۔ فبئس ما یشترون، کیا ہی برا ہے جو یہ بیچ رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس عہد کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے دوران بہت مرتبہ جو ہے بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس طرح کی بہت سی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا، میثاق لیا۔ عہد و پیمان اصل میں اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی قوم سے ایگریمنٹ کر رہا ہے، یہ بڑا عجیب بات ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اختیاری کہتے ہیں، جیسے کوئی کام آدمی کرتا ہے کہ آپ جو ہے کھانا سامان لا دیجیے، آپ کو اختیار دیا کہ ابھی ہم کو ضرورت نہیں، آپ شام تک بھی لا دیجیے تو ضرور کام ہو جائے گا، صبح بھی لا سکتے ہیں۔ کچھ کام اختیاری ہوتے ہیں جیسے کہ نوافل نماز، یہ اختیاری ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض نماز کو اختیار نہیں دیا گیا کہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے زمانے میں نبی و رسول بھیجے، کن کے زمانے میں؟ اہل کتاب جو تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، تو ان کے جو متبعین تھے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अहद व पैमान का तज़किरा किया तो इसमें समझ जाए कि बात बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी बात है। इसीलिए देखते हैं हम लोग कि काम ही के मामला में कोई काम लोगों से करते हैं या करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसे वादा नहीं लगते, कसम खिला अल्लाह कसम बोलो तुम कर दोगे, अल्लाह कसम कहा तुम आओगे, तुम जरूरी है। क्यों हम लोग उसमें कसम के बीच में लाते हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इख्तियारी होता है, ठीक है कल शाम को मिलते हैं, नहीं आए हम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, वो जरूरी नहीं था। जरूरी होगा तो उसी वक्त बात बिल्कुल ठोस अल्फाज की बात होगी। अब जैसे कलकत्ता का हम लोग को निकलना है, विधान पकड़ना है ट्रेन, तो बात हो जाती है 5 बजे तक सब पहुंच जाएगा, कोई नहीं पहुंचता तो फोन पे फोन जाएगा, उठे नहीं अभी तक पहुंचे नहीं, इसका मतलब वो खास काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां कहीं भी कुरान मजीद के अंदर कहा तो वही अखज़ल्लाहु मिसाकल लज़ीना उतुल किताब, इसका मतलब ये हो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला दे रहा है उन लोगों को और अहद ले रहा है, ताकि जब वो अहद तोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे, अहद को पूरा करेंगे तो सवाब के मुस्तहिक होंगे। यानी करना था, करना है, ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं करने की सूरत में आप गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह ने क्या अहद लिया था? वही अखज़ल्लाहु मिसाकल लज़ीना उतुल किताबा, और जब हमने अहले किताब से अहद व पैमान लिया लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम उसको खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दोगे, वला तक्तुमूनहु, और तुम उसको छुपाओगे नहीं। क्या खोल के बयान करना था? अब सोचिए, अल्लाह ताला ने तौरात दिया तो तौरात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को कहा गया कि ये जो तौरात तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई है, अब तुम्हारा नबी तो जा चुका है दुनिया से, मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर दिया, इंजील आया ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी उनको उठा लिया गया जिंदा, जानते हैं। अब उनके मुत्तबीन से अल्लाह ने कहा कि देखो तौरात और इंजील के अंदर जो अहकामात हैं उसको खोल खोल के बयान करो, बता देना, पूरी बात बता देना, छुपाना नहीं। एक ये मकसद है। दूसरा उसमें अल्लाह ताला का बयान करने का मकसद ये कि उन दोनों किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत है। तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में है, इंजील के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में है। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि इसको मत छुपाना। आज अगर यहूद और नसारा हम मुसलमानों से नफरत करते हैं और नफरत की इस कदर की अगर हमारे बच्चों को मानना पड़े तो मार, वो नहीं देखेंगे मासूम है, छोटा है, बेकसूर है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्यों इस तरह का काम करते हैं? उनके ऊपर के जो उलमा थे वो सब बिके हुए थे, उन्होंने छुपा के बोला ये सब कुछ नहीं है मोहम्मद के बारे में हमारे तौरात और इंजील के अंदर, ये सब फॉल्स बातें हैं, ये बनावटी बातें हैं, और उसी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है लोगों की नस्लों को। अल्लाह ने कहा कि नहीं, हमने नबी के बारे में तौरात के अंदर भी जिक्र किया। कुरान में वो आयत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अहमद का लफ्ज़ जिक्र किया गया कुरान के अंदर, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आगे अल्लाह ने कहा फनबज़ुहु वराअ ज़ुहूरिहिम, उनके पीठ पीछे क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया और उस हुक्म को अपने पीठ पीछे फेंक दिया, अब हम नहीं मानेंगे, और उन लोगों ने छुपा दिया, उसको छुपा दिया। इसमें एक और मसला निकल के आता है इस आयत करीमा की रोशनी में कि कुरान अल्लाह ने जो हमें आपको दिया है इसको भी खोल खोल कर लोगों तक बताना है, छुपाना नहीं है इसको। आजकल भी ऐसे बहुत से उलमा हैं जो कुरान की हक्कानियत को और हकायक को लोगों तक नहीं बयान करते। वो इसलिए नहीं बयान करते कि अभी उस एक और आयत का टुकड़ा इसी आयत में आएगा, तो क्यों बयान नहीं करते, क्यों छुपाते हैं? क्योंकि बहुत सारे मामला होते हैं। इन लोगों ने क्यों छुपाया? देखिए अल्लाह ने क्या कहा, फनबज़ुहु वराअ ज़ुहूरिहिम, जैसे अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि सारी चीजों को खोल खोल के लोगों के लिए बयान करो, तक तुम उसको छुपाओ मत, उन्होंने उसको पीठ पीछे डाल दिया। मतलब होता है ना कि उसकी कोई अहमियत नहीं दे रहा, भाई हमको उससे कुछ नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, वश्तरू बिही समन कलीला, और उसको थोड़ी कीमत पर बेच दिया, थोड़ी कीमत पर उसको बेच दिया। आप सोचिए कि तौरात कौन खरीदेगा? कागज का टुकड़ा है, किताब है, कौन खरीदेगा? बेचने का मतलब ये हुआ उसका मिस यूज करना। आज भी ऐसे बहुत से उलमा हैं जो यही काम कर रहे हैं, वो सच सही बात लोगों को नहीं बता रहे। कुरान की जो सही माना है, तर्जमा है, तफसीर है, वो लोगों तक वो सही सही बात नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? उनको लगता है कि अगर लोगों को सही बात हम बता देंगे तो जो एक कारोबार हमारा चल रहा बंद हो जाएगा। समझ रही है? इसको भी, कुरान को भी आज के जमाने में बेचा जा रहा है, इससे पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं। कितने लोग तो बन गए, करोड़ों और अरबों के मालिक बने हुए हैं इसी कुरान को बेचने की वजह से। ये बेचने मतलब ये नहीं कि नुस्खा उठाए और 300 रुपए को हदिया करे, वो बेचना नहीं। बेचने का मतलब जो अल्लाह ने कहा ना, वश्तरू बिही समन कलीला,
तुम लोगों ने उसको थोड़ी थोड़ी कीमत में बेच दिया। फबीसा मा यश्तरून, और ये जो बेच रहे हैं बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा काम कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं ये बहुत ही बुरा है। ये जो हुक्म है सूरह आले इमरान आयत नंबर 187 का 187 का, ये हुक्म गरचे अहले किताब को दिया गया है, लेकिन ये जो सिफात है अहले किताब की, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमानों के अंदर भी आ चुका है। जैसे एक आदमी से हमारी बहुत पहले मुलाकात हुई, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो हमने कहा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़िए, माशाल्लाह बस वक्त रहता है, बहुत पहले की बात है, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद से जुड़ेंगे, दर्स व तदरीस से जुड़ेंगे, दर्स सुनिए, खुतबा सुनिए, कुरान पढ़िए। बोले हम कुरान तो पढ़ते हैं, क्या तुम कुरान जो पढ़ लेगा वो एक 1/3 जो है कुरान खत्म कर देगा। हदीस सही है कि जिसने सूरह इखलास पढ़ लिया 1/3 के बराबर उसने कुरान पढ़ा। अब वो देखिए उसका गलत माना क्या निकल आया। अगर सही मानों में उसका कहने का मतलब ये है कि अज्र के एतबार से तिलावत जो है ना, तो क्या है रिसाइट बोलते हैं उसको, तो वो जो है तिलावत जो रिसाइट जो है ये तो पूरी कुरान के बारे में है ना। सूरह मुल्क की अलग फजीलत है, सूरह बकरा की अलग फजीलत है, सूरह आले इमरान की अलग फजीलत है, हर सूरत की अपनी अपनी जगह पर एक फजीलत है, उसको तिलावत करनी चाहिए कुरान की। उसी तरीके सूरह इखलास की एक अलग फजीलत, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि जो कोई सूरह इखलास की तिलावत करता है वो एक तिहाई हिस्सा पढ़ कुरान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ जैसे एक अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वहां तक पहुंचेंगे तो इस तरह से सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो हदीस भी हमें याद होनी चाहिए कि जो कोई कुरान की तिलावत करता है एक एक हरफ पर दरस किया है। अल्लाह रसूल ने कहा मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम में हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है, 3 हो गए, 30 नेकी हमने कमा लिया। तो ये देखिए कैसे वो आदमी कहने लगा कि हम तो सूरह इखलास पढ़ते तो हमने एक कुरान पढ़ लिया, क्योंकि वो जिस आलिम से दीन सीखे हुआ है उसने सही बात बताई नहीं। अब वो गलती अहले किताब के उलमा ने किया, बात को छुपा दिया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो थे ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, याद रखिएगा ये नोटिस रखिएगा कि जब आपने हिजरत की थी उस वक्त यहूदियों के एक सरदार थे अब्दुल्लाह इब्न उबई, जो मुनाफिकों का सरदार था। मदीने की में उसकी ताजपोशी होने वाली थी, क्योंकि मदीने के अंदर एक तो मुसलमान बस गए थे, क्योंकि वो मक्का आते थे और अल्लाह के नबी के दीन से बहुत मुतासिर हुए, तो मदीने में मुसलमान एक सेफ जगह बना चुके थे, वहीं रहने वाले थे, जिसको अंसार सहाबा कहा जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, मक्के में परेशानियां हुई मुसलमानों को, तो अल्लाह ने मदीने में मुसलमानों को खड़ा कर दिया। लेकिन मुसलमानों से ज्यादा वहाँ यहूदी थे मदीने के अंदर, परमानेंट वहाँ के यहूदी रहने वाले थे। और मदीने में होता नहीं था, हम लोग एक नियामतपुर एक इलाका है, तो नियामतपुर इलाके में एक आदमी की ताजपोशी होगी तो पूरे इलाके का जिम्मेदार होता है। कोई भी मामला होगा थाना पुलिस उसी को बुलाएगा कि भाई क्या हुआ उस इलाके में, आप जो बताइएगा मानेंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई की ताजपोशी होने वाली थी। मामला क्या हुआ, अभी ये ऐलान होने वाला था वालेकुम कि आप मदीने के जिम्मेदार बनेंगे, लीडर बनेंगे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। आप जब मदीना गए तो सारे मतलब जो वहां के लोग थे उन्होंने आपकी सच्चाई सदाकत को, आपकी अमानत को देखते हुए उनको मतलब कि हटाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोगों ने अपना बात क्या कहते हैं कि अपना लीडर मान लिया, कायद मान लिया। ये उसको बहुत तकलीफ थी, सही बात है, वो तकलीफ उसकी जायज भी थी कि अभी हमारी ताजपोशी होने वाली थी, इतने में ये हिजरत करके आगे और अल्लाह के वसल्लम मामलात में, तिजारत में, बहुत सारी चीजों, हर तरह की चीजों में इंसाफ करते थे। ऐसा नहीं था कि अमीर गरीब को दबा दे, ऐसा कुछ नहीं था। अब उसको मदीना वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के यहूदियों ने भी माना इस बात को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बेहतर इस ओहदे के लिए, क्योंकि वो इंसाफ करते हैं, वो सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो ये तो एक खुन्नस थी उनके अंदर, यहूदियों के अंदर एक खुन्नस थी, है ना। यहाँ पे देखें इन लोगों ने तो शुरुआती दौर से यानी कि बनी इस्राइल के दौर से, जब बनी इस्राइल कौम आई उस दौर से इन लोगों को चिढ़ थी इस बात से कि मोहम्मद को हम आखिरी पैगंबर नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे कि वो हमारी नस्ल से नहीं है। और बात मैंने बताई थी कि इब्राहिम सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ईसा अलैहिस्सलाम तक आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद रसूल है। एक नस्ली तासुब भी था कि वो हमारे नस्ल से क्यों नहीं हुए। इसका जैसे आजकल हम लोग के अंदर है जी, वो गरीब हम लोग जात बिरादरी बनाकर मुसलमान को मुसलमान नहीं समझ रहे हैं, जात बिरादरी के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको इस्लाम के चश्मे से देखने की जरूरत है। ये भी हमारा मुसलमान भाई है।
इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को जो है माना नहीं। जो बात अल्लाह ने कही कि अगर उनके उलमा बता देते कि देखो तौरात में ये सही है, तो वहां के बाद जो यहूदी होते वो सही बात मानते, हक बात मानते। अब्दुल्ला इब्न सलाम जो थे रबी अल्लाह अन्हु मदीने के अंदर यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, और अल्लाह ने उनको इस्लाम से नवाजा, वो इस्लाम कबूल किए, मुसलमान बने। और तो अल्लाह ने उनको हिदायत भी दिया। एक वाकया ऐसा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि जिना का मसला दो मियां बीवी लेकर आए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि मामला हम ही लोगों का है, मर्द किसी और औरत से जिना किया था, औरत किसी और मर्द से जिना की थी। उन लोगों ने जब तौरात को खोला तो तौरात में भी लिखा हुआ था कि इतना आपको रजम किया जाएगा, जमीन में आपको धंसा कर कांधे तक, और आपको रजम के पत्थर मारे जाएंगे। उन्होंने तौरात को पढ़ा, उसको छुपा दिया, और उन्होंने कहा चलो मोहम्मद के पास चलते हैं, अगर इससे कम सजा कुछ मिला तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लोग आए और आकर कहेंगे अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि आपके कुरान में जिना के बारे में क्या है, क्या हुक्म है आपके कुरान में। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। इन लोगों ने कहा कि वहाँ भी तो वही बात है जो हमारी किताबों में है। अभी समझ में आ गया, मैच कर गया दोनों। अब दोनों जोड़े ने मियां बीवी ने बात किया, चलिए हम लोग यहाँ पे मुकर जाते, करें हमारी किताब में तो बहुत आसान है। तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से कि आपकी किताब में तो रजम करना है, हमारी किताब में तो आसान है। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम वहाँ मौजूद थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कहाँ किताब लेकर आओ, समझा लिया। तो जो कह रहे हो कि हमारी किताब में और आसान सजा है, इन तौरात के अंदर कहाँ लिखा है, लेके आओ किताब, लेके आओ, तुम मजबूर की जाओ, लेकर आओ। तो लेकर आए वो। अब वो लेकर जब आए तो जैसे ये जिना की आए तो हाथ रख दिया, हाथ रख के बता रहे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने पकड़ा हाथ, हटा, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ, बताओ पूरी बात। फिर भी वो ईमान नहीं लाए, समझ गए ना, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। कहने का मकसद ये है कि अहले किताब में से अब्दुल्ला इब्न सलाम भी थे, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, मुसलमान बने, लेकिन उनकी जुबानी अब देखिए कैसे उन्होंने हरकतें की। तो यहूद और नसारा ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसा ही काम करते हैं, वो हमेशा धोखा देना, फरेब करना, मुनाफिकत इख्तियार करना, पीठ के पीछे से आप पर हमला करना, ये सारी चीजें उनके अंदर है। और जो इस्लाम की जो तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी जो मदीने के अंदर गुजारी है, जो मक्के के अंदर गुजारी, आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी पर अदना बराबर भी जुल्म नहीं किया, जबकि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये हुक्म या ये फतवा नहीं दिया कि मुझे परेशानी हो रही तो अपनी जात के लिए लड़ो, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लड़े तो अल्लाह के लिए, अपनी जात को कोई तरजीह नहीं दी। नहीं, मुझे तकलीफ हो रही चलेगा, लेकिन मेरा जो मकसद इस्लाम को फैलाना, उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जितने भी गजवात हुए, यानी जिहाद जब बोलते हैं, गजवा बदर हो, गजवा उहद हो, खंदक हो, खैबर हो, फतेह मक्का हो, ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। कभी भी अल्लाह रसूल ने नहीं कहा कि हम तंग किया जा रहा है, चलो तलवार लेकर निकल जाते हैं। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि यूरोप के अंदर, बिलखुसूस यूरोप के अंदर आज जो लोग मुसलमान होते हैं वो इंस्पायर होते हैं आपकी सीरत से कि आपने तलवार के दम पर दिन को नहीं फैला सकते थे। एक वक्त ऐसा हुआ कि मक्का फतह हो गया, मक्के के मालिक बन गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार बन गए। लेकिन आप जब मक्के में दाखिल हुए तो आपने हज़रत बिलाल से कहा कि ऐलान कर दो कि अगर कोई अभी सुफियान के घर में है तो भी अमान में है, अगर किसी के घर में कोई है तो भी अमन में है। यानी मक्के में सब लोग मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इनकी हुकूमत हो गई, मक्का 60 हिजरी में फतह हो गया। लेकिन आप जानते थे हो सकता है कोई डर के मेहमान यहाँ पे किसी का कब्जा हो जाएगा, तो हम डरते हैं अपने घर में कि मार दी जाएगी क्योंकि उनके खिलाफ है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिसके घर में है महफूज है, उसके जान और माल की हिफाजत की जाएगी, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। अबू सुफियान मक्का के सरदार थे, बाद में वो भी मुसलमान हो गए। इन्हीं के बेटे थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, है ना। अबू सुफियान की बेटी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी हुई थी, ससुर भी थे। फतेह मक्का के बाद वो भी मुसलमान हो गए। तो ये तरीका था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ा। इस आयत में अल्लाह ने जो इशारा किया यहूद और नसारा के उलमा से या उन लोगों से कि नबी के बारे में जो बात बयान की गई तुम्हारी किताबों के अंदर, तुम उसको ना छुपाओ। आज इसी जैसा मिलता जुलता चीज आज हम मुसलमानों के अंदर भी है। आज अगर मसले की तासुब है, ये फला मसला का है, फला मसला का है, फला मसला का है, इसको बढ़ावा कैसे मिल रहा है मालूम है? मतलब कि जो लोग इल्म वाले नहीं है दीन का, वही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये मसला सही है। आप पहले इल्म हासिल करें ना,
ہم جیسے مان لیجیے کہ اپنے مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم بتا دیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ اسٹڈی کریے، میری بات مت سنیے، سن لیے میری بات کو، اس کو آپ تحقیق کیجیے، آپ تحقیق کریے نا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ ایک زمین خریدنے جاتے ہیں تو کیا پیسہ سے دیتے ہیں؟ اس کے دلیل نکلواتے ہیں، اس کا کاغذ نکال کے پرچہ نکلواتے ہیں، اس کا ٹیکس جمع ہے کہ نہیں، اس کا خزانہ بھرا ہے کہ نہیں، ساری انکوائری کرتے ہیں۔ تو دین میں کیوں نہیں کرتے؟ نہ وہ زمین ہمیں زندگی بھر رہنا اس میں، ہماری اصلی زمین ہے قبر، نہ پرماننٹ ٹھکانہ، کوئی چھین نہیں سکتا وہ، اس کے بارے میں سوچنا ہے نا۔ تو ایک زمین کی کتنی تحقیقات کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ دین کے لیے کیوں نہ کریں، جبکہ جنت جہنم اسی بنیاد پر ملے، ہمارے عقائد کی بنیاد پر، ہمارے اعمال کی بنیاد پر۔ آج علماء نے وہی کام کیا، یہ چیزیں لا دی، وہ چیزیں لا دی، پوچھنے والا کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس چیز کو صحیح غلط کون ٹھہرا رہا ہے؟ جن کے پاس علم کا دین نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ صحیح ٹھہرا دے رہے ہیں، وہ فائٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، تو ہم اپنے علم کی بنیاد پر ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ آج صحابہ جو مسلمان ہوئے، صحابہ کیوں مسلمان ہوئے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے آواز لگایا سارا مکہ دوڑ کے چلا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے پریکٹیکل ان چیزوں کو کر کے دکھلایا۔ اب جیسے مکے کے اندر ایک رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر زندہ کاٹ دیا، کیوں؟ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مکے کے اندر بہت ساری برائیاں تھی، برائی یہ بھی تھی کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے مکے کے اندر ایک اور برائی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر دیتا، عورت بیوہ ہو جاتی، تو اس عورت کو کالی پرچھائی مانا جاتا۔ بہت طرح کی برائیاں تھی، شرک و بدعت تھی۔ معاشرتی اعتبار سے بھی لڑکیوں کے بارے میں بہت غلط سوچ مکہ والے، مطلب لڑکی جو ہے لونڈی بنائی جائے گی، غلام بنائی جائے گی، وہ کیا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اس طرح کی چیزیں کا خیال تھا۔ کوئی عورت تھی، اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو اس کو کالی پرچھائی مانا جاتا تھا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ہے، اگر لڑکی شادی کر کے بیٹا مر گیا تو فوراً ساتھ بول دیں گے میرا بیٹا اٹھا گیا، ڈائن ہے، آتے آتے بیٹا اٹھا گیا۔ وہ ہمارے یہاں بھی آج کل ہے۔ تو وہ جہالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نبی اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجے تھے۔ آپ کو اگر دنیا میں عزت ملتی ہے آج بھی اور قیامت کی صبح تک ملے گی، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ باعمل تھے، پریکٹیکل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی۔ آپ گبرو جوان 25 سال کے نوجوان تھے، آپ کی پہلی شادی تھی، اور جس سے آپ کی شادی اس کی تیسری شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیا آپ نے، ان کی تیسری شادی تھی، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا بھی تھا ان کا، زید بول کر۔ آپ نے پریکٹیکل جب شادی کیا تو مکہ والوں بڑا اثر پڑا، ارے یہ تو خالی بولتا نہیں ہے، اس کا خالی بول بچن نہیں ہے نا، جیسے ہم آج لوگ بول کے نکل جاتے ہیں، جب پریکٹیکل بات آ جائے۔ پریکٹیکل سے ایک اور بات یاد آیا کہ ایک آدمی کی شادی الٹی کا معاملہ ہے، ایک آدمی کی شادی ہوا اور جس سے شادی بہت بیمار رہتی، تو اس کے بعد سوچے کہ بچہ وغیرہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو دوسری شادی کروا دیتے ہیں۔ تو بیٹی ووٹی ہوئی، لڑکی باپ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی رہتے تو دوسری بیوی آئے۔ جب پنچایت میں میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں لڑکی کے باپ نے بات رکھا، صحیح بات رکھا، تب پنچایت والے بولے نہیں، یہ سب غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، بیوی ہے رہتی دوسری نہیں لانا چاہیے۔ لڑکے کے باپ نے اچھی بات نہیں ہے، آپ پریکٹیکل کریں گے، میرے ساتھ معاملہ ہے ہم سمجھا رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ معاملہ جائے گا تو بولنے میں تو آسان ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے تو پریکٹیکل آئیے نا، منہ سے کہیں بولتے ہیں، پریکٹیکل آئیے۔ تو وہی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، آپ نے جو باتیں بولی آپ نے کر کے دکھلایا۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو ایک میسج گیا کہ ہاں صحیح معنوں میں جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور یہ تو خود ہمارے نبی نے کر کے دکھلایا۔ ان کا گھر بسا کہ نہیں بسا، بہترین بیوی تھی، یہاں تک کہ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی انتقال کے بعد اگر اللہ کے نبی کو جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ خدیجہ کے سہیلی کے یہاں تھوڑا گوشت پہنچا دو، اتنی لگاؤ، اتنی محبت۔ دوسری بات، جب تک وہ آپ کی نکاح میں تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یہ بھی سمجھو، جب تک وہ آپ کی نکاح میں تھی، 25 سال آپ کی نکاح میں تھی، آپ کی عمر 25 سال کی تھی، 50 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 40 سال میں نکاح کی تھی تو 40 میں 25 جو 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ہی آپ نے دوسری شادی کی۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے نا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ہی بڑا پاک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی وہ آپ نے کر کے دکھائی۔ اسلام یہی چاہتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ نے کہا، اے ایمان والوں سے کہا تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں؟
तो हमें अपने जुबान से ज्यादा अपने किरदार पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जुबान से कुछ भी इंसान बोल देता है। सवाल होता है जब प्रैक्टिकल बात आती है तब उसका असल भाव रहता है। यही वजह है कि जुबान कहते बहुत लोग गली हो जाते हैं। क्यों? हम तो महफिल में बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, वो जब हमारे यहाँ पहुंचा पता चला तो जाए तो जाए फीस जीरो है। तकरीर तो अच्छी किया, बातें तो अच्छी बोले, इसीलिए ऐसे उलमा की बहुत जबरदस्त पकड़ होगी जो बड़ी लंबी चौड़ी खुतबा देते हैं, तकरीरें करते हैं और अमल कुछ नहीं। ऐसे उलमा को भी लाया जाएगा क़यामत के वक्त से ना कि 3 तरह के लोगों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा। तो हमें बाअमल बनना है और कुरान की जो सही चीजें लोगों तक पहुंचानी है। ये भी एक इससे मसला निकलता है कि अगर हमारे पास कुछ कुरान का इल्म है, कोई सीखना चाहता है तो उसको धुतकारे नहीं, उसको भगाए नहीं, उसको हम सिखाएं, वरना अल्लाह हमारी पकड़ करेगा कि हमने आपको इल्म दिया था दूसरों तक फैलाने के लिए, आपने उस इल्म को छुपा क्यों दिया, महदूद क्यों कर दिया कि नहीं हम मर जाएंगे तो हम चाहते कि ये चीज हम ही लेकर मरे, कोई और ना जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 188 में कहा ला तहसबन्ना लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ, जिन लोगों को हमने अता किया जिससे वो खुश होते हैं, व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, और वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ उस काम पर भी की जाए जो उन्होंने किया नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ उस काम पर भी किया जाए जो उन्होंने किया ही नहीं। यानी मैच में मैदान में वो पहले 11 में थे ही नहीं, लेकिन चाहते हैं तारीफ हो कि हम सब कुछ किए। ऐसा होगा? सोचिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब। ए नबी, आप ऐसा मत सोचिए कि ये अजाब नहीं चखेंगे, आप इनके बारे में मत सोचिएगा जो बच जाएंगे, इनको तो अजाब चखना होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। अब देखिए किन लोगों के बारे में बात हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको दिया, बिमा अतौ, जो कुछ उनको अल्लाह ने दिया, यफ़रहूना, फरहा यफ़रहूना तो खुश हो, इसीलिए उर्दू में लड़की जब फरहा होता है उसका माना होता है खुशी। यफ़रहूना जो खुश होते जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है, खुश होने के साथ साथ क्या कहते हैं, वो जो काम किए नहीं है वो चाहते, वो युहिब्बूना, हब्बा युहिब्बू का मतलब चाहना, उसी से मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि अय्युहमदू, उनकी तारीफ की जाए। हम मतलब तारीफ होता है, हम बोलते हैं हम बारिकाना, अय्युहमदू की उनकी तारीफ की जाए, बिमा, उस चीज पर लम यफ़अलू, जो उन्होंने किया नहीं, फ़अल यफ़अलू करना। अब सोचिए इस तरह के लोग हमारे माशरे में है कि नहीं। एक तो अल्लाह ताला ने जो कुछ नमाज रखा है तो वो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, खुश जाते हैं कि हमारे पास जो है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ज्यादती हो रही है, इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी उन चीजों पर भी तारीफ की जाए जो उन्होंने काम नहीं किया। अब इसके देखिए समाज से बिल्कुल जुड़ी हुई बात बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल ये होता है, मान लीजिए कि आप लोग एक इदारा कायम करते हैं या मस्जिद बनाते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं, अल्लाह तौफीक दे सबको, आमीन। एक मस्जिद बन रही है, सारे लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं, जो 5 रुपए में दे रहा है वो भी उसमें बराबर का शरीक है, जो हर तरह से मेहनत कर रहा है वो भी शरीक है। अब एक मस्जिद तामीर हो जाती है, क्या होता है, एक नस्ल गुजर जाती है, अब दूसरी नस्ल आती है, दूसरी नस्ल पूरा नाम कमाती है, ये तो हमारे दादा वगैरह काम किए। अच्छा ये मस्जिद वाले वो तो हमारे परदादा बनाए थे, सिर्फ आप ही के दादा थे, और कोई नहीं था, और कोई नहीं था। लेकिन इस तरह की चीजें हम सुनते हैं दस्तरखानों पर, मेहमान नवाजी में, कहीं जाते हैं दावत वगैरह में तो बात होने लगती है, कहीं रिश्ते की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, अजान की आवाज आ गई, अच्छा यहाँ से मस्जिद करीब है क्या, अरे वो तो मेरे परदादा बनाए थे। सोचिए अल्लाह ने क्या बयान किया कि वो उस चीज को भी चाहते हैं जो उन्होंने काम नहीं किया तो तारीफ हो। हमने नहीं किया, हमारे दादा बनाए, जिसमें हमारा क्या रोल है, हम क्यों इतना एतराज है, हमें क्यों इस बारे में खुशी और फख्र महसूस हो रहा है, हमारे दादा बनाए हैं, हम नहीं ना बनाए हैं। अगर वो आदमी पलट के जवाब दे, बताइए आपके पुरखों ने कितना अच्छा काम किया, आपने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे, आपने क्या किया है, अरे दादा फटे तो चले गए कब्र के अंदर, आप जिंदा हैं, आपने कुछ किया कि नहीं, ये तो बना दी, उसका आप ही तो बना दीजिए, दादा के नक्शे कदम पे चलिए। तो इस तरह की चीजें हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, जबरदस्ती ऐसी चीजों की तारीफ में जो काम हम कर देंगे, जो काम हमसे हुआ नहीं है। आगे अल्लाह ने बयान किया, ऐ नबी आप ये मत सोचिएगा कि वो अजाब नहीं चखेंगे। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। अजान वलहुम अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह ने आगे कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया गया है जिसको वो चखेंगे या उसमें डाले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 189 189, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर मुतलक है। इस आयत करीमा का भी एक अपना फलसफा है कि हम लोग जब तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अक्सर बेशतर हर 4 सफ़े 5 सफ़े के बाद इस तरह की आयत आ जाती है कि जमीन और आसमान की मिल्कियत या बादशाहत अल्लाह के लिए है। ये क्यों आती है, इसको समझना होगा। ये इसलिए आती है कि इंसान गफलत का शिकार ना हो जाए। जो होता है ना, अगर इस तरह की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन बीच में दे तो इंसान ये समझ लेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते करते आज तो लड़ रहा है आपस में, और सबको दुनिया छोड़ के जाना है। जिस चीज के लिए खून खराबा हो रहा है वो चीज हम भी उससे फायदा नहीं उठा पा रहे, है ना। तो ये मानना होगा कि नहीं, ये सब अल्लाह का है। ये अगर हम मोमिन मुसलमान समझ ले कि हमारे पास भी जो कुछ है अल्लाह का है, आपके पास जो कुछ है अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें से बहुत से लोगों को हुकूक है उनको अदा करना, उसकी अगर फिक्र लग जाए तो कभी हम नहीं कहेंगे कि हमारा हमारा है, क्योंकि अल्लाह कल पकड़ेगा क़यामत के दिन सब तुम्हारा था ना, ज़कात निकाले नहीं निकाले, मदद की नहीं किसी की, तो फंस जाएंगे, अल्लाह पकड़ेगा वहां पे, सब तुम्हारा था ना, हाँ तो बताओ उसकी ज़कात इतनी निकली क्यों नहीं निकाली, इतने लोगों का हुकूक तक क्यों नहीं अदा किए, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें अल्लाह पाक का बयान किया जाता है कि हम डरे अल्लाह से। सही बात है, जमीन आसमान की बादशाह अल्लाह है, अल्लाह के लिए वही बादशाह है और वो हर चीज पर काबिल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुछ निशानियों को बयान किया है नंबर 190 में, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, बेशक जमीन व आसमान की तख्लीक में यानी पैदाइश में, व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार और रात व दिन के हेर फेर में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अकलमंदों के लिए निशानी है। अल्लाह का अकलमंदों के लिए निशानी है, क्यों कहा अल्लाह ने, मुसलमानों के लिए निशानी है, मोमिनों के लिए निशानी है, या लिउलिल नास लोगों के लिए निशानी है, अकलमंद क्यों कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचिए कुरान का जो अंदाज यहाँ अल्लाह ने बयान किया, आप देखेंगे मुख्तलिफ अंदाज कुरान का, ये कैसा मामला है कि अकलमंदों के लिए निशानी है। अब अगर बात की जाए मुआशरे के अंदर, तो भाई आप बेवकूफ है अकलमंद नहीं, हम अकलमंद हम बेवकूफ थोड़ी है, हम अकलमंद है। हर आदमी अपने आप को अकलमंद मान रहा है, मानना भी चाहिए, कोई नहीं कि हम बेवकूफ है, हर कोई दूसरे को बेवकूफ समझ रहा है, ये भी एक फलसफा है। हम अपने सामने सबको बेवकूफ समझ रहे हैं, सामने वाला हमको बेवकूफ समझ रहा है, यानी कहने वाले कुल मिलाकर सब कोई अकलमंद समझ रहा है अपने आप को। अब अल्लाह ताला ने अकलमंद के बारे में बताया कि अकलमंद कौन लोग हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं अकलमंद की क्या तारीफ है, कैसे माना जाएगा कि अकलमंद है। अल्लाह ने कहा जमीन व आसमान की तखलीक में और रात दिन की हेर फेर में अकलमंदों के निशानी है। मतलब ये हुआ कि जब सो कर उठते हैं सुबह में, तो हम देखते हैं जमीन व आसमान को देखते हैं, जमीन व आसमान को देखते तो पता चलता है कि आसमान कैसे टिका हुआ है, खंभे के गिर भी नहीं रहा है ना। जमीन को देख रहे हैं कि जमीन गिर नहीं रही है, डामाडोल नहीं हो रहा, बैलेंस इसका बिगड़ नहीं रहा है, आखिर कैसे हो रहा है। और जमीन हद निगाह तक फैली हुई है कि नहीं, आसमान भी है तो आसमान जो है वो गिर नहीं रहा है, मतलब कि वो टिका हुआ है। ये दो चीजें हो गई। अब 2 घंटा पहले दिन था, सूरज निकला हुआ था, 2 घंटे के बाद अंधेरा हो गया, तो ये कैसे हो गया कि सूरज डूब गया और रात हो गई। कहीं पे तो कोई मेन चीज होगा जो गिरा रहा होगा कि अब गिरा देंगे तो रात हो जाएगी, फिर उठाने के दिन हो जाएगी। ये वही आदमी नोटिस कर सकता है जो अक्लमंद है। नहीं, ये सारी चीजों का करने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह तबारक व तआला है। कैसे रोजाना हो रहा है, जब से दुनिया की तकलीफ हुई है तब से रात दिन हो रहे हैं, और क़यामत उस वक्त इंशाअल्लाह होंगे। तो ये अक्लमंद लोग होंगे जो समझेंगे और अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अक्लमंद उसी को कहा गया है, इस चीजों को देखे और देखकर अल्लाह के करीब। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया आयत नंबर 191 के अंदर, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो लोग खड़े बैठे और लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जमीन व आसमान की तख्लीक में पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। देखिए फिर वो बात आगे ऊपर में जिक्र हुआ कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जमीन व आसमान का पैदा होना और रात और दिन का बदलना, ये अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अब अल्लाह ने उन अक्लमंदों ही के बारे में कहा, अल्लज़ीना, अक्लमंद कौन है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, क़ियामन खड़े होकर, क़ुऊदन और बैठकर, व अला जुनूबिहिम और पहलुओं के बल लेटकर। अब ये अगर कहीं पे आपसे सवाल आए तो बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में अक्लमंद किसे कहते हैं। तो ये आयत नंबर याद है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 190। अक्लमंद वो है
जो खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अक्लमंद है। आज के जमाने में ऐसे लोगों को बेवकूफ माना जाता है, बेवकूफ माना जाता है। दिन रात नमाज पढ़ लो, पहले नौकरी हासिल कर लो, पहले एक जगह सेट कर लो, उसके बाद जिंदगी भर तो पढ़ना है तुमको नमाज, जिंदगी भर। जैसे एक खुद वाक्य मेरे घर के अंदर का है, मेरा चचेरा भाई माशाल्लाह अभी लोग तरह अभी 20-22 साल का होगा और आज से नहीं करीब करीब 7-8 साल से दाढ़ी रखे हुए हैं। तो जब वो भी नहीं तब से रख रहा है और माशाल्लाह बहुत दीनदार है। हाँ, तो एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई और वो इत्तेफाक से मस्जिद वर्क करता रहता है। उनके 4 बेटे, चारों माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर है, गवर्नमेंट जॉब में। उनके उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अभी दाढ़ी रखने क्या जरूरत है, तो सेटिंग हो जाती, सेट हो जाते हैं, जानते हो हालात कैसे चल रहे हैं। हिकमत भी तो कोई चीज होती है, तो समझाने लगे हिकमत भी कोई चीज होती है। तो मेरे भाई ने बहस नहीं की कि रिश्ते में जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ये गलत बात नहीं है, कमाने का दाढ़ी से क्या लेना है ना, नौकरी का दाढ़ी से क्या लेना है, वो एक अलग चीज, एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादा बहस नहीं है। लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं। अल्लाह कह रहे का कलमत वो है जो खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। ठीक है, अल्लाह का जिक्र तो सारी चीजें आ गई, नमाज भी हो गया, रोजा भी हो गया, ज़कात भी हो गया, सदका खैरात भी हो गया, और जो जिक्र अज़कार है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह, इस सब कुछ इसमें आ गया। अब अकलमंद कौन है? वो तफक्करुना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जो गौर फिक्र करते कि आखिर आसमान टिका कैसे है। कौन है जो पकड़ के रखे हुआ है? कहीं ना कहीं तो पिलर होगा, जहां भी होगा तो सोमालिया में होगा, बेल्जियम में होगा, कहीं ना कहीं तो पिलर बड़ा होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन कहीं पे नहीं है। फिर वो गूगल में जाता है, सर्च करता है, यूट्यूब में जाता है, कहीं पे पिलर नहीं है। वो गौर फिक्र करता है कि सोचिए कि जिस अल्लाह ने इसको तो हमें मेरिकल कहेंगे ना, एक मौजज़ा जो अपने आंख से रोजाना हम देख रहे हैं। इसी तरीके से रात दिन का उजाला, अभी हम लोग 2 घंटा पहले शाम में थे, दिन का उजाला था, अभी लाइट की जरूरत पड़ी, अंधेरा होगी, कैसे होगा? ये भी एक मेरिकल है और टाइमली हो रहा है, रोजाना हो रहा है। हमसे पहले जो लोग थे उनके जमाने में हो रहा था, हमारे बाद भी जो आएंगे उनके जमाने में हो कैसे रहा है। तो अकलमंद वो है गौर फिक्र करते हैं, गौर फिक्र करने के बाद अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ये कहने का मकसद ये है। अब गौर फिक्र किया, नमाज नहीं पढ़ रहे तो कैसे गौर फिक्र हुआ, समझिए ना। तो गौर फिक्र करने के बाद अल्लाह के करीब हो जाते हैं और कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन, तुमने इन तमाम चीजों को बेमकसद नहीं बनाया है। तो कहते हैं अपने रब से कि अल्लाह तुमने इन चीजों को बेमकसद नहीं पैदा किया है, सुबहानका, तू पाक है, फक़िना अज़ाबन नार, तू हमें जहन्नम की आग से बचाए। बताइए, गौर फिक्र करने के बाद एक अक्लमंद आदमी की पहचान ये है कि जब वो गौर फिक्र करेगा तो अल्लाह के करीब हो जाएगा। और रोजाना गौर फिक्र करेगा ताकि रोजाना करीब है ना, एक टाइम या एक दिन नहीं करीब रहना है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ दुआए कलिमात को बयान कर रहा है। अल्लाह ने कहा रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैतहु, ऐ हमारे रब, जिसे तू जहन्नम में दाखिल कर दे तहकीक कि वो रुसवा हो गया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मदद नहीं, जालिमों का कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन, ऐ हमारे रब, हमने उस मुनादी उस पुकारने वाले की पुकार को हमने सुना, ले ईमान, जो ईमान की दावत दे रहा था, ईमान की तरफ बुला रहा था। क्या कह रहा था कि अनआमनु बिरब्बिकुम, कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ। फआमन्ना, बस हम ईमान लाए। रब्बना, ऐ हमारे रब, फगफिर लना ज़ुनूबना, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, तू हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे। तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमारी जो मौत दे, वफात दे तो नेक लोगों के साथ दे। बड़ी प्यारी दुआ है, यहाँ तक याद कर लेंगे। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना तवफ़्फ़ना मअल अबरार। बड़ी बेहतरीन दुआ है कि जब मौत तो बरक है ना, लेकिन मौत हो तो नेकोकारों की तरह मौत हो, नेकों के साथ हमारे साथ। मतलब ये कि जब मर के जाए तो उन नेकोकार लोगों के साथ हमारा ठिकाना हो, हमारी जगह, हमारा मस्कन हो। कहने का मकसद ये है कि इतनी प्यारी प्यारी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। आप दुआओं पर गौर करें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ऐ हमारे रब, हमें बहुत सी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद दे। पूरे कुरान में नहीं मिलता। सोचिए क्यों अल्लाह ने नहीं दिया? हमें जरूरत है ना, हमारी पैसा दौलत है कि नहीं, जरूरत नहीं है, उसके बगैर काम कैसे चलेगा, खाएंगे पिएंगे कैसे? लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीजों का तस्करा कुरान में कहीं नहीं किया, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं किया। क्यों करने का नहीं करने का मकसद क्या है? ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत नहीं, देखिए पैसा बहुत बड़ी जरूरत है, उसके बगैर सही बात है कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं कि उसके बगैर इंसान मर जाए, ऐसी भी नहीं है।
रिस्क के बारे में एक मरतबा बातचीत हुई कि हम ही उलमा बरादरी में रिस्क के बारे में लोग बहस कर रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो बात हुआ कि रिस्क जो अल्लाह तकसीम किए हुए सबको दिया है ना, सबको किसी को कम, किसी को मीडियम, किसी को ज्यादा। तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह ने आके रिस्क को जो तकसीम किया, इस दुनिया में देखते हैं कि ये बहुत मालदार है, ये बहुत खुशहाल है, कोई निचले तबके का कुछ एकदम ही दबा हुआ है और बड़ी मुश्किल से ही घर चल पाता है, कुछ तो बिल्कुल मांग कर ही खाना पड़ता है। तो आखिर अल्लाह ऐसे क्यों करता है? बहुत सी बातें हो रही थी हम लोगों के दरमियान में, बात बड़ी बेहतरीन बात निकल के और मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और घर में पढ़ाई खत्म होने वाली है। उन्होंने एक बेहतरीन बात बयान की। उन्होंने कहा कि रिस्क की जो तकसीम है, मुझे लगता है कि अल्लाह ने रिस्क जो बांटा है किसी की काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बांटा है। हम समझते ना जितने काबिल हो उतना पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे नाकाबिल नालायक से मर जाते भूखे। लेकिन देखेंगे कि एक ऐसे ऐसे भी नालायक जिनके पास अरबों रुपया है, और जो काबिल आदमी के पास उसके सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने रिस्क जो है काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बांटा है कि अगर आपकी इतनी काबिलियत होगी तो आपके पास इतनी दौलत होगी। साहबा से बड़े कोई काबिल थे, लेकिन साहबा चमड़ा चूस चूस कर अपनी जिंदगी गुजारते थे, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था जब वो इस्लाम कबूल की, जब वो मुसलमान हुए। अल्लाह ने रिस्क को तकसीम किया है। वो कह रहे थे मुझे लग रहा है कि अमाल के ऊपर है, नेक अमाल के ऊपर। जैसे हमारे नेक अमाल होंगे अल्लाह ताला वैसी रिस्क में बरकत देगा। और उनमें से एक और जवाब अच्छा है दूसरे भाई का। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि रिस्क की तकसीम जो होती है वो सदका वो खैरात के ऊपर है, और कितना कर अल्लाह उसको दे रहा है, अल्लाह उसको दे रहा है, क्योंकि इसको जरूरत, इसको देना है, काम हो रहा है, इसके देने से कई लोगों का पेट चलेगा, इसको देना है, इसी को ज्यादा देना सभी को है, लेकिन इसको ज्यादा देना है क्योंकि इससे बहुत फायदे हैं उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों अहबाब को, इनसे मिलने वालों को, इदारों को, मसाजिद को, मदारिस को। तो ये भी एक तकसीम का वजह बताई। लेकिन पहली वजह मुझे अच्छी लगी कि अल्लाह ने काबिलियत पर किसी को रिस्क तकसीम नहीं किया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो आदमी काबिल नहीं है उसके पास दौलत कैसे लगा होगा, सवाल ये है ना। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ वही बात बयान किया कि एक पुकारने वाले की ऐ हमारा कोई दुआ कर रहा है, हम हमारा दुआ कर अल्लाह के बंदे, ऐ हमारा रब, हमने उस पुकारने वाले की पुकार को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था और कह रहा था कि आमिनू बिरब्बिकुम, तुम अपने रब पर ईमान लाओ। तो आमन्ना, हम ईमान लिया, हम ईमान लिया है। अब जब हम ईमान ले आए तो ईमान लाने से क्या हम जन्नत में चले जाएंगे? अब सोचिए, ये देखिए ये आयत करीब बहुत प्यारी आयत है। जब पुकारने वाले ने पुकारा कि ईमान लाओ अपने रब के ऊपर, आमन्ना, तो हम ईमान लाए, है ना। अब ईमान लाने की बात खत्म हो, मेरी बात खत्म नहीं हुआ। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारा रब, जुनूब जम मतलब गुनाह होता है, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। अब एक चीज यहाँ वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ ईमान लाने से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर ईमान लाना यहाँ काफी होता तो कभी अल्लाह से नहीं कहेगा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, यूं कहेगा वो ईमान ला दिया जन्नती हो गया। अब कैसे गुनाह? ईमान लाने के बाद जो अमल साले का जो भी चैप्टर बचा हुआ है उस पर हमें फोकस करना है। ईमान तो एक एंट्री पास है कि आप मुसलमान हो, अब मुसलमान हो गए, लेकिन वहां से क्या काम है? अब आप अमल साले करें। अल्लाह ताला के देखिए जो निजाम है, सिस्टम है, जो दीन इस्लाम के अल्लाह ने बनाया है, इन्हीं चीजों को भी उलमा ने छुपा दिया। उलमा ने ये बातें भी मुसलमानों को नहीं बताया, मुसलमान जानते नहीं। जैसे आज कितने ऐसे मामलात है, आपसी मामलात मुसलमानों के लिए बहुत ही गड़बड़ है, खासकर लेन देन का मामला, नाजायज कब्जा का मामला, किसी के हुकूक को छीनने का मामला, और एक चीज ताकतवर का कमजोर को दबाने का मामला। आज मुसलमान माशरे में बिल्कुल एकदम मकड़ी के जाल की तरफ फैला हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। एक मजबूत आदमी है, वो कमजोर को दबा के कोई बोलने ही नहीं जाएगा। हमारी खामोशी उस जुल्म को, उस बर्बरियत को बढ़ा देगा, जिसकी चपेट में हम आज नहीं आए तो कल हमें नजर जरूर आएंगे, क्योंकि बीज हम ही बो रहे हैं तो फसल कौन काटेगा, है ना। ये सारी चीजें हैं जो एक मुआशरे का देखिए अल्लाह ने क्या कहा कि अगर आप मुसलमान हैं और किसी का नाहक जमीन ले लेंगे, किसी का नाहक माल खा लेंगे, किसी पर ज्यादती कर देंगे तो क्या करेंगे? ना देंगे, आप किसी का ईमान निकला है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईमान के साथ, ईमान तो 50% काम हुआ, 50% बचा हुआ है। क्या करना है? अमल स्वालिह, हर मामला में अमल स्वालिह करना है, नेकी का काम, उसके बाद हम आपको जन्नत मिलेगी। यही वजह थी कि सहाबा इकराम, खासकर उस्मान गनी जब कब्र के पास से गुजरते इतना रोते क्या दाढ़ी दिख जाती। उस्मान गनी कौन थे? अशरा मुबशरा में से, जन्नत की खुशखबरी दुनिया में अल्लाह ने उनको दे दिया था उस्मान गनी को। लेकिन वो जब गुजरते थे तो क्या करते थे? बड़ी रोते थे। साहबा पूछते थे उस्मान गनी आपके सामने
बहुत सी चीजों का जिक्र किया जाता है, जन्नत का जिक्र किया जाता है, जहन्नम का जिक्र किया जाता है। आप कब्र के मामला में ऐसा क्यों होते हैं? वो कहा कि कब्र की मंजिल आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ये मंजिल अगर आदमी पार कर लिया तो आगे की सब मंजिल आसान हो जाएगी, और यहाँ अगर मामला फंस गया तो आगे के सारे मामला फंस गए। एक वो आदमी रो रहा है जिसको मरना है और जन्नत में जाना है, समझ गए ना? मरे और जन्नत में गए, वो कितना रो रहा है। और हम लोगों का हाल देखिए, इतने गुनाह हमारे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर इतने गुनाह में हम लोग डूबे हुए हैं, इतनी बुराइयां है हमारे अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे, इसलिए कभी मान लेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाई। अल्लाह ताला ने कहा कि मान लाना तो ये तो एंट्री पास है, अभी आपको अमल करना है, नेक अमल। बहुत सी आजमाइशें आएंगी, बहुत सी मुसीबतें आएंगी, उसमें आपको पास होना है। एक चीज जो इसमें और है, जब हमने कह दिया कि रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे गुनाहों को तू बख्श दे, एक और लफ्ज़ कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, और हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे। इसके दो माना है। एक तो जिस बुराई में हम कर चुके, जिस बुराई